Before recording this podcast, I was hesitant to speak on this topic. दुख को गले लगाओगे तो दुख भी तो तुम्हें गले लगाएगा. हालांकि जब दुख तुम्हें गले लगाएगा तुम शायद बहुत रोगे, रातों रात रोगे. Debate and the whole podcast with the relationship, women and misogynistic approaches and सुख महसूस कर पाओ, उस दुख में सुन. ये बहुत पेनफुल चीज़ है जब आप कहते हैं कि यार मैं ना वर्थी नहीं हूँ, मैं आई एम नॉट वर्थी ऑफ हर लव. मे बी मेरी लाइफ ही शायद ना यार कठिनाइयों में बीती है, अकेलेपन में बीती है, बहुत ही परेशानियाँ रही हैं, जिम्मेदारियाँ भी आ रही हैं, शायद यही है लाइफ. Don't get influenced by Bollywood movies, by those romantic love stories shown in those Bollywood, even the Bollywood movies. Don't end this thing. इसको कुछ है ही नहीं पाएगी, इसको तो खत्म करो इसको. Because it is destroying you mentally. खुद की जिंदगी में नहीं होगा वैसा जो वहाँ पे एक्ट करे. It's just a act. तेरे हाथ में मेरे हाथ है जंजीर में. पोएटिक वे में बोलते हुए हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शशरबाद पॉडकास्ट. आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप्स की, लव की, फ्रेंडशिप की एंड दिस थिंग कॉल्ड सिचुएशनशिप्स, ग्रीन फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स. इन सब टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं. शुरुआत होगी प्रॉब्लम से और फिर हम उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे और देखेंगे कि कैसे इनकी सोल्यूशन होनी चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस क्या रहा है. बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, before recording this podcast, I was hesitant to speak on this topic. Reason, because ये बहुत ही sensitive topic होता है. ये ऐसा topic है जिसके बारे में हर किसी के पास कुछ ना कुछ तो ज्ञान है ही है कि ये चीज़ करनी चाहिए, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, लड़की बाजी नहीं करनी चाहिए, इट्स टाइम वेस्ट. कुछ कहते हैं कि नहीं फोकस करो, एंड देयर इज सो मच chaos in this world space. Even you, if someone comes to you and asks you about some relationship advice, about some मतलब समझ रहे इस रिलेशनशिप के बारे में, प्यार के बारे में अगर कुछ कोई आपसे पूछने आएगा, यू विल हैव अ स्टोरी, यू विल हैव समथिंग टू टेल. मे बी तुमने कहीं सुना हो या खुद एक्सपीरियंस करा हो, बट यू विल हैव समथिंग सिमिलरली. बट द क्वेश्चन इज इट ट्रू, इज इट वर्थ? And you can only answer this question. So what I'm trying to tell here is that I'm just going to tell you what I felt and what my opinions are, which may help you, which may not help you, but it's worth listening at what I have to say, because somewhere I feel and somewhere I can even guarantee that it will help me. So let's get started with the problems. Number one problem that I have written down, that you think, many people think, and I will use the word you so that you can relate, that you think you are alone, you think she completes you. Now, whenever I try to speak on this topic, it suddenly something came to my mind. What came to my mind, that Andrew Tate and the whole podcast with the relationship, women and misogynistic approaches and इतना जो बोलते हैं कुछ लोग बड़े ही रिलेट करते हैं. लोग यानी कि लड़कों की बात कर रहा हूँ, रिलेट करते हैं और उसको बहुत आइडल मानते हैं. I really like some of the things of these two brothers, Andrew Tate and his brother, but some things I totally disagree. So right now, कहीं ना कहीं वो एकदम दिमाग में क्लिक हुआ जैसे ही मैंने सेंटेंस बोला, you think you are alone, you think she completes you. But एंड मैंने कोई एंड्रयू टेट को इतना सुना भी नहीं है और ना ही उन लोगों को सुना है जो इन टॉपिक्स पे ज़्यादा बोलते हैं. इट कम्स फ्रॉम द माई ओन एक्सपीरियंसेस, माई ओन ऑब्जर्वेशंस, एंड दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ being a podcaster or any kind of content creator, that speak what you know, speak what you have experienced. So everything is from my observation and experience. So please listen it with an open mind, and I hope I will be able to help you. So problems goes like this, that you think you are alone, you think she completes you. Now, this sounds so much romantic in relationships. Sometimes I also see this many times, that you know what, you complete me. You say to your girl, and girl say to her boy, that you know, you complete me, we complete each other. And this is not true, and this should not be true according to me. Reason is that, are you incomplete without her? And if it's true, or are you incomplete without him? And if it's true, then you have to work on yourself. Not because that she is not worthy or she is not that good or he is not that good, because you need to be complete. Because that's what you should do. That's your job. Because if you are incomplete, then what's the point of living?
तो ये जो कोटेशन है जो कि बहुत रोमांटिक साउंड करती होगी शायद कुछ कपल्स के लिए, आपके लिए, दैट यू नो व्हाट, शी कंप्लीट्स मी, you are incomplete. Okay, these two things are same, you know. She completes me and you are incomplete. That's why she completes it. That there is a need to become complete. जिसको हिंदी में कहेंगे तुम्हें पूर्ण बनने की आवश्यकता है, तुम्हें पूर्णता की तरफ बढ़ना है। मेरा कहना ये है कि पूर्ण यानी कंप्लीट, पूर्ण यानी कि तुम्हें अकेले जीवन जीने से डर नहीं लगता। अब ये जो चीज है ना, जरा इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तुम्हें अकेले जीवन जीने से डर नहीं लगता। पहली बात, तुम्हें अकेले। नाउ व्हेनेवर आई यूज दिस टर्म अकेले, अलोन, अगर तुम्हारे मन में एक इमेज बन रही है दुख की और खामोशी की, तो देन इट मीन्स ये एक इशारा है कि अभी तुम्हें अपने आप पर बहुत ज़्यादा काम करना है। क्योंकि अगर मैंने कहा अकेला, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे फुलफिलमेंट फील होना चाहिए, फुलफिलमेंट की छवि बननी चाहिए दिमाग में कि अकेला यानी कि मैं फुलफिल्ड हुआ, मैं हूँ, पूर्ण हूँ। अकेला मतलब ये नहीं पे अकेला रह गया, मैं हूँ ही अकेला। आई हैव दैट फुलफिलमेंट इनसाइड ऑफ माई सेल्फ। तो तुम्हें अकेले चलने की आवश्यकता है, यानी कि आई वुड से आवश्यकता है, आई वुड से दैट you must have this ability and you must see this world from this perspective कि मुझे अकेले चलना है। अकेले मतलब निराशापन नहीं है उस अकेलेपन में, दुख नहीं है उस अकेलेपन में, खामोशी नहीं है उस अकेलेपन में। उस अकेलेपन में बहुत ही इंटरटेनमेंट है, बहुत ही फुलफिलमेंट है। ऐसा भी नहीं है कि दुख नहीं है, दुख है, लेकिन उस दुख को एक्सेप्टेंस करने की एबिलिटी, एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है, फिर आगे बढ़ने की एबिलिटी है, समझने की एबिलिटी है। और कहाँ आगे नहीं बढ़ना, वहीं रुक करके, अगर मान लो दुख है तो दुखी होने की जरूरत, अकेले दुख हो गया तो बस वहां पे फिर अगर तुम दुखी हो रहे हो, खुद में तुम दुखी हो और उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, गुड, मीन्स कि तुम उसको एक्सेप्ट कर दो, समझ रहे, दुख को आने देंगे। क्योंकि तुम ये पाओगे जब दुख को तुमने गले लगाया, तो उसके अंत में जाते तक, यानी कि जब तुम दुख को गले लगाओगे तो दुख भी तो तुम्हें गले लगाएगा। हालांकि जब दुख तुम्हें गले लगाएगा तुम शायद बहुत रोगे, रातों रात रोगे, लेकिन दुख ने तुम्हें गले लगाया है तो तुम एट द एंड या बीच में कहीं सुख महसूस कर पाओ। उस दुख में सुख, उस दुख में, अब उसको सुख नहीं कहोगे क्योंकि दुख ने गले लगाया, तो मैं सुख का नाम क्यों दूं? तुम दुखी कहोगे, लेकिन दुख में शायद मुस्कुरा रही, शायद तुम फुलफिलमेंट फील कर रहे हो, शायद तो उस पूर्णता की तरफ बढ़ रहे। लेकिन दूसरी जगह जब तुम्हें दुख होने लगा है तो तुम्हें किसी की आवश्यकता पड़ने लग जाती है, लेकिन मुझे आई नीड टू टेल हर, आई नीड टू टेल हिम एंड टॉक टू हिम। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। मैं ये नहीं कह रहा कि बताओ मत अपने लव वर्ड्स को, अगर तुम किसी चीज़ से गुजर रहे हो, किसी भी प्रकार का इमोशन है, बताओ, इंजॉय करो, सेलिब्रेट करो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि सेलिब्रेट करो, लेकिन ये एबिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई भी नहीं है सेलिब्रेट करने को, कोई भी नहीं है दुख बताने को, देन यू आर इनफ, बिकॉज यू आर कंप्लीट, तुम पूर्ण। और ये जो पूर्ण है, ये जो पूर्णता की तरफ बढ़ने की बात है, मुझे लगता है प्रश्न मेरे सामने उठता है कि शिशिर, यू कैन ऑल्सो आस्क मी दिस, क्या तुम पूर्ण हो? मुझे लगता है कि नहीं, और मैं पूर्णता की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये जो अवेयरनेस है, या जो मेरा एक्सपीरियंस है, या फिर जो मेरे अंदर से आवाज आती मुझे कहती है कि यू नीड टू बिकम complete, you need to fulfill yourself, right? When I say that you don't need anyone, I don't need anyone, it doesn't show my arrogance, मुझे किसी की जरूरत नहीं। It says that if you are here then I'm happy, you know, it's okay, if you are here then glad, let's celebrate it together, let's do this. But if you are not here, I will still be sane because I'm living with myself. Now this line also has so much importance that I am living with myself. What does it mean? कि मैं अपने साथ ही जी रहा हूँ, यानी कि तुम उस पेज पर हो कि जहाँ पर तुम अपने अंतर मन को बहुत खूबसूरती से पहचान पाते। थोड़ा यहाँ पे स्पिरिचुअल साउंड कर सकते हैं अगर एक स्पिरिचुअल नजर से समझे, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं तभी आप ये पाते हैं कि देयर इज समवन इनसाइड ऑफ यू। हालांकि ये भी कहना गलत होगा कि इनसाइड ऑफ यू, बट यू फील दैट यू आर नॉट अलोन। And of course, the whole point of that meditation is that you become the watcher. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि
जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो हमको ये सिखाया जाता है जब बेसिक मेडिटेशन में कि अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करो। तो अगर हम अपनी मतलब कि तेज सांस नहीं लेनी है, मगर धीरे धीरे सांस ले रहे हैं, जिसे सांस ले रहे, बस तुम्हें कितना शांत होना है कि तुम्हें अपनी सांसें पता चल जाए कि ऊपर नीचे तुम ले रहे हो, छोड़ो। उससे रहता है कि तुम ये पाओगे कि जो सांस ले रहा है वो एक अलग इंसान है, और यहाँ पर एक अलग इंसान है जो देख रहा है उस सांस को लेते हुए। सो दिस इज द वॉचर, दिस इज यू, जो देख रहा है सब कुछ होते हुए, है ना। दिस इज ब्यूटीफुल। बट वहाँ पे नहीं जाते हैं, वो स्पिरिचुअल हो जाएगा। बट जब ये चीज़ अचीव होने लग जाती है तब हम कहते हैं दैट आई एम लिविंग विद माई सेल्फ। दिस इज कॉल्ड बीइंग कंप्लीट। एंड आई डोंट थिंक कि हम एक दिन में अचीव कर लेंगे, या बस कहने से अचीव हो जाएगा, या फिर मेरे पॉडकास्ट को अगर आप सुन रहे हो सुनने से अचीव हो जाएगा। ये एक सफ़र, एक जर्नी, जिसकी शुरुआत कर देनी चाहिए हमको सभी समय। और यही मेरे को लगता है सही उम्र है। और जो पिछली जनरेशन रही हो और जो अभी की जनरेशन है, यानी कि जिस उम्र में आप हैं 17, 18, 19, 20, 21, 22 से इस उम्र की रेंज में, आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी फॉर यू गाइज टू लर्न दिस थिंग। क्योंकि बहुत केओस बहुत है, बहुत नॉइज़। और इसके बारे में भी, केओस के बारे में, किस तरीके का नॉइज़ है, केओस है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप यू लाइक दिस आइडिया। और मन में शायद बहुत सारे सवाल उठे इस चीज़ को सुनने, और शायद आप मुझसे कंप्लीटली डिसएग्री करें कि क्या बेवकूफ़ वाली बातें कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये कुछ भी बातें बोल रहा है। अप्रिशिएट इट, आई अप्रिशिएट योर क्रिटिसिज्म, बट देन आई विल आस्क यू दैट ओके, यू कैन क्रिटिसाइज मी बिकॉज ऑफ माई थिंग। नाउ इमेजिन कि जो मेरी चीज़ें अगर मैं उसे हटा दूँ, नाउ आई विल रिमूव दैट थिंग जिसके ऊपर आप क्रिटिसाइज कर रहे थे। देन व्हाट यू हैव टू से, विच थिंग यू वांट टू से टू द वर्ल्ड। क्योंकि शायद आपके पास कोई चीज़ है ही नहीं कहने को, जो है वो क्रिटिसिज्म ही है किसी और की बात को सुन करके। विथ ऑल रिस्पेक्ट, व्हाट यू हैव टू से इट आउट लाउड टू द वर्ल्ड। Maybe that will change your life. That will change the lives of millions people out there. लाखों करोड़ों लोगों की वो शायद जिंदगी बदल दे। Have some courage to speak. And if you want to criticize over this, criticize. Even I want you to criticize over this thing, whatever I will say, because I also want to get better. This the whole point of recording videos, podcasts. This is my job, podcasting. But the whole job is to get better at the things we do. And what I do, I speak, I record videos, I try to come up with ideas, think, write. This is my job. So if you can contribute in making me better, why would I say no to you? So my comment section is open to the whole, any kind of criticism. My Instagram DM is open to the criticism. My email is open to the criticism. And not just criticism, any kind of problems that you face, any kind of opinions you have, I'm open to talk to you. Let's move ahead. Now, second problem which I see, that you don't believe in yourself, that you are worth for the love, for her or for him, for anything. ये जो चीज़ है, चलो सॉल्यूशन पे जाते ही नहीं, चलो प्रॉब्लम की ही गहराई को समझ। जो एक लड़का है या लड़की है, यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं किसी लड़के से ही बात नहीं कर रहा, मैं दोनों से ही बात कर रहा हूँ, कि आप जब ये खुद को कहते हैं, या सबकॉन्शियसली खुद को कह रहे हो, या फिर उसको फील करते हैं लेकिन खुद को कहते नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत पेनफुल चीज़ है जब आप कहते हैं कि यार मैं ना वर्थी नहीं हूँ, मैं आई एम नॉट वर्थी ऑफ हर लव। मे बी मेरी लाइफ ही शायद में यार कठिनाइयों में बीती है, अकेलेपन में बीती है, बहुत ही परेशानियाँ रही हैं, जिम्मेदारियाँ भी आ रही हैं, तो शायद यही है लाइफ। एक अजीब सा उनके अंदर ना खालीपन है। स्पेशली लड़कों में देखता हूँ मैं ये चीज़, लड़कियों में भी देखी है लेकिन ज़्यादा लड़कों में शायद मैं यहाँ गलत हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो खालीपन होता है उनमें, और उस खालीपन में बहुत शोर भी होता है आसपास का, खुद का, जो वो ना चाहते हुए सेक्रीफाइस कर देते हैं उनका, और जो शायद सेक्रीफाइस है ही नहीं उसको सेक्रीफाइस मानने लगते हैं, उसका दुख, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस जद्दोजहद में ये महसूस होने लग जाता है कि मैं ना वर्थी नहीं हुआ, शायद मेरे में ही कमी। तो ये जो फीलिंग है जहाँ पे आपको लगता है कि मैं वर्थी नहीं हूँ प्यार का, किसी के साथ का, ये बहुत ही पेनफुल मेरे में। तो इट्स रियली पेनफुल टू सी दोज पीपल सफरिंग,
with just because of this one thought they made up in their mind that they are not worthy of now. And I think that I had this thing. I have felt this thing, not because of relationship or because of some girl. I have felt this thing when I was just a kid, maybe fifth or sixth standard. मुझे ऐसा लगता था कि हालांकि वर्थी स्पेसिफिकली नहीं फील होता था, ऐसा लगता था दैट देयर इज नो वन टू लव मी, टू टॉक टू मी, टू जस्ट नो दैट हैव आई डन माई थिंग. मतलब कोई पूछे कि काम किया नहीं किया है ना, ओके और नॉट. और ये शायद उस उम्र में मेरे को महसूस होता था. एंड ये जो महसूस होता था, इसी की वजह से आई यूज्ड टू फील आई एम नॉट वर्थी, आई एम नॉट. और ये क्वेश्चन की विल आई गेट द लव और नॉट, ये सब ये तो शोर में से लग जाता है, खालीपन भी. अब वो चीज़ नहीं, और वो चीज़ मैंने बहुत अच्छे से समझी है. और वही रीज़न है कि वो चीज़ नहीं है जब भी शायद मैं पॉडकास्ट फिर रिकॉर्ड कर पा. तो प्रॉब्लम पे मैंने थोड़ा एम्फेसाइज इसलिए करा क्योंकि ये बहुत पेनफुल है जब मैं उन लोगों में देखता हूँ, अपनी उम्र के लड़कों में लड़कियों में देखता हूँ, अपने से जो थोड़े सीनियर हैं उनमें देखता हूँ. बहुत कंसर्निंग है. वो शायद कहते नहीं है सामने, क्यों ही तुम खुद को कहोगे कि आई एम नॉट वर्थी ऑफ लव, बट तुम महसूस वही करते हो. सो आई डोंट नो इफ एनीवन हैव टोल्ड यू और नॉट. आई एम टेलिंग यू दैट यू आर वर्थी ऑफ नाउ. You are worthy. You deserve everything. You deserve happiness. You deserve the world. Every one of you, because you are capable. You are capable of achieving that world, of creating that world, of creating yourself, creating the life. You are capable of that thing. And when you are capable, then you are worthy. It's just that you have to work hard. You have to know that what you are meant to become. You have to just live. Then things will start getting better. I'm not saying this just because to motivate you. It's just, I experience this. I feel this thing. And if you are lost somewhere in your thoughts, and it's time to come out of that and tell yourself that you are capable, you are worthy, and you deserve it, and you will get it. Even if you deserve, you will still have to work really hard to get that thing which you deserve. Because you know you deserve, and you know that you deserve good health. And you will go for walk, you will go for running, because you know you deserve for that. You deserve good health. So, let me tell you, you deserve. I deserve, and because everyone here listening me, everyone whom I believe that they are capable, deserve. So, let's understand कि इस प्रॉब्लम का क्या मेरा ओपिनियन है और क्या सॉल्यूशन हो सकता है. सॉल्यूशन तो एक अगर वर्ड में बोलूँ सिंपली कि इफ़ यू आर फीलिंग दैट, एक तो मैंने बता दिया कि अपने आप को बोलो दैट बिकम यू आर केपेबल एंड यू डिजर्व. एंड मैंने ये भी बोला कि अगर आप ये बोलते हैं कि मैं डिजर्व करता हूँ, स्टिल तुमको वो अचीव करने में, अचीव करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर तुम वर्थी बन रही हो बिकॉज तुम्हें पता है कि मैं डिजर्विंग हूँ. तो यू बिकम वर्थी व्हेन यू टेल योरसेल्फ दैट यू आर डिजर्विंग. नो, चेंज इट. यू स्टार्ट बिकम वर्थी व्हेन यू टेल योरसेल्फ दैट यू डिजर्व दिस थिंग. सो अगर हिंदी में मैं इसको कहता हूँ कि योग्य बनो, ये तो मेरे को बड़ा इसमें ना धार लगता है इस शब्द में कि योग्य बनो, योग्यता की तरफ बढ़ो. जब तुम योग्य बनने लगोगे, कभी दिमाग में ये नहीं आएगा कि मैं इस चीज़ के वर्दी नहीं, क्योंकि तुम्हें जब योग्यता की तरफ बढ़ोगे, यानी कि जब when you will start becoming worthy, you will realize that I deserve the world, I deserve this thing, I deserve this thing. मैं नहीं कह रहा हूँ रिपीट करो और सच हो जाएगा, but will start feeling this thing. Right now you are feeling that I'm not worthy, but when you will start being worthy, you will feel that you deserve. अब जिस चीज के लिए आप बढ़ती बन रहे हैं, यू डिजर्व इट. आप बढ़ती इसलिए बन रहे क्योंकि आपको पता है कि आप डिजर्व करते हैं. तो जब आपको पता है कि आप डिजर्व करते हैं, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ फीलिंग दैट आई एम नॉट वर्थी. लेकिन एक ही मोमेंट में आपको ये फील हो सकता है कि आप वर्थी नहीं है. व्हेन यू विल स्टॉप बीइंग वर्थी, व्हेन यू विल स्टॉप बीइंग योग्य. मिक्स कर दी, मतलब जब आप योग्य बनना यानी कि मेहनत करना, सीखना, आगे बढ़ना. आप किस चीज में योग्य बनना चाहते हैं,
पढ़ाई में, अपनी फिटनेस को लेकर के, पैसों में, अपनी रेपुटेशन को लेकर के, फैमिली, पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर के, क्या है वो योग्यता? वो योग्यता हमें पता होती है कि अगर मैं, फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैं पढ़ूंगा या फिर मैं किताब पढ़ूंगा तो मेरे को समझ आएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो। यहाँ पे योग्यता छुपी है। मैं क्या करूँगा? किताबें पढ़ूंगा ताकि मैं योग्य बनूँ। तो जिस भी जगह पर हम हैं, हमें पता होता है कि इसे कहते हैं जी योग्य बनना, लेकिन हम बनते नहीं, बिकॉज वी आर, कुछ भी कह लो कि केयरलेस हैं, आलसी हैं। तो जैसे कि अभी पॉडकास्ट जो लोग सुन रहे हैं, तो अगर वो सुन के अगर ये खुद को कहेंगे कि नाउ आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग बट शिशिर हैज सेट, तो इसका मतलब क्या है कि दे आर बीइंग वर्थी। और जब आप वो योग्यता की तरफ बढ़ेंगे तो आप कभी खुद को कहेंगे ही नहीं कि आप वर्थी नहीं है, और खुद को ये बल्कि महसूस होने लग जाएगा कि मैं डिजर्व करता हूँ। तो जितनी चीज़ तुम बड़ी कह सकते हो, दैट आई डिजर्व टू लिव इन दिस बिग हाउस, और जो भी तुम्हारे सपने हैं, एंड इफ यू रियली से इट, इफ यू रियली फील इट, एंड इफ यू कैन सी इट हियर, एंड ऑफ कोर्स मेक श्योर दैट इट इज़ नॉट अनरियलिस्टिक। ओके, कहीं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कोई जादू नहीं है, मैनिफेस्टेशन वगैरह नहीं है कि बोल दिया और मैनिफेस्टेशन में भी खैर ये नहीं होता। बट डोंट गेट अवे विद दिस थिंग कि बोल दिया, बोलते रहो हो जाएगा। यू हैव टू वर्क हार्ड। इट्स जस्ट दैट अगर तुम बोलते हो तो यू नो दैट यू डिजर्व, एंड इफ यू नो दैट यू डिजर्व, यू विल कीप डूइंग, यू विल कीप बीइंग वर्थी। सो यही एकमात्र सॉल्यूशन है वर्थी बनने का। I also asked my juniors, and when I say that juniors, मैंने पिछले पॉडकास्ट के एपिसोड में भी कहा था, so basically मैं जल्दी से बता देता हूँ कि मैं किन को जूनियर्स बताता हूँ, कि जो मुझसे सीखना पसंद करते हैं, उम्र में थोड़ा छोटे हैं, क्लास में छोटे हैं, एंड ऑल्सो आई टीच, जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं मैं उनको इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन सिखाता हूँ, तो वो हो गए। तो वो 12th में हैं और कुछ अब कॉलेज में आ गए हैं, फर्स्ट सेकेंड ईयर में। तो उनसे मैंने पूछा कि मैं एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, एक दो चीज़ इंक्लूड करूँगा, इफ़ यू हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू आस्क, एंड दे आस्क दिस क्वेश्चन दैट शुड आई फॉलो माई करियर और बी विद हर, एंड आई थिंक शी बिकम्स माई डिस्ट्रैक्शन एंड ब्ला ब्ला ब्ला। आई होप यू गेट द आइडिया। यहाँ पे क्या पूछने की कोशिश हो रही है कि मैं यार अपना करियर फॉलो करूँ या गर्लफ्रेंड्स के पास जाऊँ, गर्लफ्रेंड बनाऊँ, या बॉयफ्रेंड भी, लड़कियों के लिए भी है कि मैं अपने करियर फोकस करूँ, जो बॉयफ्रेंड है वो डिस्ट्रैक्शन बन जाएगा या बन सकता है। तो दो चीज़ें हैं कि या तो दो चीज़ें नहीं है, शायद एक ही चीज़ है, ऐसे समझते हैं। मैंने यहाँ पे इसका ये लिखा है, ये चीज़ लिखी है कि फॉर यू एट दिस एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर गोल। अभी कुछ कुछ कहेंगे कि नहीं गोल नहीं है इम्पोर्टेंट, मतलब कुछ नहीं कहेंगे, बट उनके एक्शन तो यही कहते हैं। क्योंकि अगर अब आपका गोल है, ड्रीम है, इफ यू रियली लव दैट ड्रीम, you know, when you really love something, you go after it. There is madness in love. We have seen the madness of love in the romantic movies, but हम rarely ऐसी madness देखते हैं किसी सपने से, गोल से हमें बड़ा प्रेम होता है। और मैं उसी सपने से बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि you should love yourself, and then you will start doing things what matters. Basically जो भी गोल है आप उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं प्रेम के साथ। क्या उस टॉपिक पे नहीं जाते हैं, किसी और दिन का टॉपिक रखते हैं। सो बेसिकली इफ़ यू आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप, तो जिसने क्वेश्चन पूछा ही वाज ऑलरेडी इन रिलेशनशिप, सो दिस इज द थिंग, यू विल फॉर्म अ सेट ऑफ रूल्स फॉर योर सेल्फ दैट यू कांट इवन ब्रेक। किस चीज़ के रूल्स? आप कोई काम करना चाहते हैं, डिस्ट्रैक्शन किस चीज़ में बन रही है? आपकी पढ़ाई में, उसमें। और टू बी ऑनेस्ट पता क्या है कि मैं बता दूँ कि सच क्या है यहाँ पर, कि वो डिस्ट्रैक्शन नहीं बन रही या बन रहा है, होता क्या है, करना क्या है, पहले ये समझो, और होता क्या है मैं ये बताऊं। करना ये है, यू हैव टू क्रिएट सेट ऑफ रूल्स फॉर योरसेल्फ, कि फॉर एग्जांपल कि मैं ये काम करूंगा या ये चीज़ मैं किताब पढ़ूंगा। आई डोंट नो व्हाई कि किताब पढ़ने का एग्जांपल क्यों आता है। फॉर एग्जांपल कि मैं इस समय पढ़ाई करूंगा, या इस समय खेलूंगा, इस समय ये करूंगा, एंड देन इस समय आपसे बात करूंगा। और ये सेट ऑफ रूल्स हो गए। रूल्स किस चीज़ के? जो आपका गोल्स है, ड्रीम्स है, उसके लिए जो भी रूल्स बनते हैं उसको लिख लो, एंड देन सेंड दैट रूल्स टू दैट योर गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, कि उसको वो रूल्स भेजो। दीज आर द रूल्स जो कि मैं खुद नहीं तोड़ सकता, एंड इफ शी कम्स बिटवीन दोज रूल्स देन ही इज हर्ट और ही इज द हर्ट। अब यहाँ पे आ जाता है कि हाँ मैं करियर के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को छोड़ूँ। नाउ दिस इज कम्प्लीटली अ पर्सनल क्वेश्चन। इस उम्र में तुम मुझसे पूछोगे ना, माय एडवाइस वुड बी यस, यस, कंप्लीटली है। सब कुछ डिसएग्री करेंगे, अग्री करेंगे, ठीक है। तो जो डिसएग्री और अग्री कर रही हैं, डू व्हाट वर्क्स फॉर यू।
बट अगर वो तुम्हारे उस सपनों की गोल्स के बीच में आ रही है, उस सेट ऑफ रूल्स के बीच में आ रही है, दैट शी रियली शी कांट, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको टाइम चाहिए और आप टाइम नहीं दे सकते बिकॉज यू आर सो मच इनटू योर वर्क एंड यू हैव सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई विल से दैट लीव दैट बॉय, बिकॉज अगर वो उस सेट ऑफ रूल्स को नहीं समझ सकता विथ रिस्पेक्ट, क्योंकि वो नहीं समझ सकता, कोई और समझेगा, तो इसमें उसकी गलती नहीं है। जो हम कह रहे थे कि वो डिस्ट्रैक्शन बनती है, अरे भैया बनता है, वो नहीं बनता, तुम बनने देते हो क्योंकि तुम्हारे लिए वो डिस्ट्रैक्शन है। सपोज करो कि तुम कोई और, किसी और के लिए वो शायद डिस्ट्रैक्शन ना हो, वो कहे कि दिस इज व्हाट आई हैव वांटेड, ये कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये मैं तो चाहता था आप मेरे से 2-2 घंटे बात करें कोई मेरे से, बिकॉज ही हैज टाइम और वो अलग तरीके की पर्सनैलिटी है, तो ठीक है यार, हैप्पी। बट तुम नहीं कर सकते 2 घंटे 3-3 घंटे बात, तुम ये नहीं कर सकते, तुम सोशल मीडिया पे वो रील्स भी, आई डोंट नो आई लाफ्ट ऑन दिस थिंग, बिकॉज होता है कि वो एक्सपेक्टेशंस की ये करना है वो करना है, सबको दिखाना है, मे बी यू कांट डू दैट थिंग बिकॉज यू आर सो मच फोकस्ड ऑन योर ओन थिंग। अब तो लड़कों के लिए वर्क करते हैं, लड़कियों के लिए वर्क करता है, विद रिस्पेक्ट यू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस। अब क्वेश्चन केओस की शुरुआत ये हो जाती है दैट यू कांट स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन एंड यू वांट टू अचीव योर गोल्स विद द रूल्स, जो कि रूल्स है ही, अगर आप लिख लेंगे तो, और वो आपको बता रहेंगे कि अच्छा ये है, वो रूल्स हमेशा वही है। तो आपकी जो जर्नी है वो कुछ और है, जो गोल है वो कुछ और है, लेकिन आपके एक्शंस वो कुछ और बताते हैं। और फिर आप क्या कहते हैं कि मैं उसकी वजह से डिस्ट्रैक्टेड हो गया, उस लड़की की वजह से हो गई, या उस लड़के की वजह से, उस लड़के की वजह से हो गई, या उस लड़की की वजह से हो गया। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग, मैं इसको गलत मानता हूँ, बिकॉज तुम ही डिस्ट्रैक्शन हो, तुम ही हो जो रूल्स फॉलो नहीं कर पा रहे। फॉलो योर रूल्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर रूल्स, फॉलो योर रूल्स। अगर वो उसके आड़े आती है देन प्लीज वर्क ऑन दिस, कि प्लीज लेट दिस आर माई रूल्स एंड आई रियली केयर फॉर दिस रूल, समझाओ। एंड अगेन बीच में आ रही है या आ रहा है, देन यू कट ऑफ दैट पर्सन, दैट्स माई सजेशन। बट अगेन ये बहुत पर्सनल लेवल पर हो जाता है, तो मैं चाहता हूँ ये आप पर भी मैं छोड़ता हूँ कि उस समय क्या करना चाहिए, बट एटलीस्ट रूल्स तो बना लो यार, मेक योर रूल्स, उसको भेज तो दो, उसको डिस्ट्रैक्शन मत बोलो। लड़का है लड़की है जो भी रिलेशनशिप में आप हो, तो डिस्ट्रैक्शन मत बोलो, एटलीस्ट मेक सम। मैं रिलेशनशिप के रूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके जो ड्रीम्स है गोल्स है उनके लिए आप कौन से रूल्स बनाएंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कि मेरे को ये चीज़ करनी है, मेरे को इतनी बुक्स पढ़नी है, मेरे को ये चीज़ करनी है, मेरे को इतनी मेहनत करनी है, इतने घंटे वाली मेहनत करनी है, फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देना है, इतने घंटे करना है, वो करना है, वो करना है, और शायद फिर आप शायद फिर कुछ, फिर ऑफकोर्स यू विल मेक टाइम फॉर दैट गर्ल ऑल्सो, उसके उस रूल्स के अंदर कि देन आई विल टॉक टू यू फॉर दिस सन, कि इतने टाइम के लिए हम बात करेंगे, या फिर वी विल मीट वीकली, जैसे भी। नाउ इट्स कम, ये कुछ कह सकते हैं कि इतना सब कुछ करना है तो भाई गर्लफ्रेंड को बनाइए, टाइम तो देना पड़ेगा। कुछ लड़की ये कह सकती, कुछ लड़के भी कह सकते कि इतना कुछ करना है तो मुझे बॉयफ्रेंड को बना के आके अपनी पढ़ाई करे कर, देन वो तुम्हारे लिए नहीं है, उनमें कुछ गलत नहीं है, याद रखना, उनको गालियाँ देने का नहीं है, वो तुम्हारे लिए नहीं है, दैट्स इट। ये बहुत सिंपल है, लेकिन लगता नहीं है सिंपल जब हम स्टेज पे होते हैं, क्योंकि हमारी फीलिंग्स, यही तो सारा खेल है कि फीलिंग्स और वो जो इमेच्योरिटी, इमोशनली इमेच्योर जो होते हैं, वो वहाँ पर वो जो जुड़ा हुआ है, वही तो बर्बादी का कारण बनने लगता है, वही तो कहीं ना कहीं आपको बड़े ही दुख की तरफ धकेलता है, जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं। बट अगेन यू हैव टू बिकम करेजियस यार, you have to love yourself. अरे क्यों बोले you have to love yourself? Because when you will love yourself, you will love those dreams and the goals you carry with yourself. And for the love, you can sacrifice. You know that in love, there is madness. In love, you sacrifice the thing. Now, whom you love so much, your goals, your dreams. You know, I hope. I know this whole commentary or this whole thing which I just said, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे और डिस्कशन हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट इट में गिव यू समथिंग टू थिंक अबाउट। कुछ ना कुछ मिला के सोचे कि अच्छा क्या करना है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में और इन डिस्ट्रैक्शन वाली प्रॉब्लम आ रही है। एंड रिमेंबर द ऑल प्रॉब्लम इज विद यू, नॉट विद हर। अपने आप को जरा सुधारने लगोगे, योग्यता की तरफ जब बढ़ने लगोगे, सेम प्रिंसिपल है, जब आप योग्य बनने लगोगे तो जो ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी, डिस्ट्रैक्शन। इसको याद, जब आप कंप्लीटनेस की तरफ बढ़ोगे, पूर्ण बनने की तरफ बढ़ोगे, तो ये प्रॉब्लम ही अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, लेकिन करेज चाहिए यार। आई नो दिस थिंग कि बोलना, बैठ करके बोलना आसान है, बट मैं बैठ के बोल ही रहा, बस आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग। मैं ही शायद इन सब चीज़ों का सबसे बड़ा क्या कह रहा हूँ
मरीज मरीज हूँ, ये सब चीज़ें मैंने फेस करी हैं और फेल हुआ हूँ, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बताऊँगा धीरे धीरे पॉडकास्ट अभी शुरू ही हुआ. नाउ दिस इज अगेन माई इम्पॉर्टेंट. I love this thing. I love this line, and I want you to focus now. Don't get influenced. Don't get influenced by Bollywood movies, by those romantic love stories shown in those Bollywood, even the Bollywood movies. Don't get influenced, please. Why? Because simple answer कि वो सच नहीं है. Don't live a lie. Don't expect a lie. फ्रॉम वो उनकी खुद की जिंदगी में नहीं होगा वैसा जो वहां पे एक्ट करे. इट जस्ट अ एक्ट. यू नो व्हाट हैपेंस, व्हाई वी लव दोस काइंड ऑफ मूवीज. हैव यू एवर वंडर्ड, हैव यू एवर थॉट? यू नो दैट्स व्हाई आई से दैट पीपल हैव स्टॉप्ड थिंकिंग. दे शुड लर्न this ability to think. You know why we like those kind of movies? Because we in our lives we lack drama. हमारी जिंदगी में ड्रामा नहीं होता तो बड़ी बोरिंग हो जाती है. ये जो रिलेशनशिप है जिसके अंदर ही केओस बच जाता है, जिसके अंदर नहीं यहाँ पर बड़ा रिलेटेबल फील हो गए. जो थोड़ा सा मीम्स वगैरह जानते हैं या फिर थोड़ी सी नॉलेज होगी, यहाँ पे कुछ ऐसा नैरेटिव चलता है कि जो लड़कियाँ होती हैं उनको रेड फ्लैग्स पसंद आते हैं. और ये रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग के बारे में भी हम बात करेंगे कि लड़कियों को रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स बड़े पसंद आते हैं. रेड फ्लैग्स बहुत पसंद आते हैं, जो टॉक्सिक होते हैं, जो रिप्लाई नहीं करते हैं, उसके काफ़ी मीम्स बनते हैं. आई रियली लाफ ऑन दोस मीम्स. एंड क्यों वहाँ पे सच्चाई पता है क्या है कि जो टॉक्सिसिटी है या फिर वो जो लड़का है जिसको हम कह रहे हैं कि जो रिप्लाई नहीं करता उससे ही बात होती है, बिकॉज दैट क्रिएट्स द ड्रामा एंड वी लैक ड्रामा इन आवर लाइफ. सो अब दोबारा मूवी के एग्जाम्पल पे आते हैं कि जो मूवीज हम देखते हैं तो जो हमारे जीवन में ड्रामे की कमी होती है, दैट मूवी फुलफिल दैट ड्रामा. That's why we are so fascinated by those kind of movies. And इस fascination में हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए. वो चलता है ना इंस्टाग्राम पे कि आई डिजर्व दिस, मैं तो एक डिजर्व करता हूँ, मैं तो ये डिजर्व करती हूँ, मी एंड हु एंड ब्ला ब्ला ब्ला. तो कम आउट ऑफ दिस, वापस आओ, ये मी एंड हु से वापस आओ. ये मैं भी तो एक लड़की डिजर्व करता हूँ, यहाँ की डिजर्व करता हूँ, वहाँ की डिजर्व करता हूँ. यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस. Maybe you deserve love, you deserve everything, but this is not the way. You set that unrealistic expectations of the lie. You want to live the lie. जो कि अब झूठ कितने दिन टिक जाएगा, और झूठ क्या पता कभी मिले भी ना, और कभी मिलेगा ही नहीं तो हमको ऐसा लगेगा कि कभी वो मिला ही नहीं, कि जो डिजर्व करता हूँ करती हूँ वो तो कभी मिला ही नहीं. और जो सामने है उसको भी खो दोगे, जो मिला है या मिल सकता है, जो है ही ऑलरेडी, उसको कभी देखोगे नहीं. सो ये जो बॉलीवुड ने जिस तरीके से इज पूरी, इवन आई लव मूवीज, लेट मी टेल यू गाइस, आई लव मूवीज, आई लव वॉचिंग दोस बॉलीवुड रोम कॉम्स, आई लव शाहरुख खान्स मूवीज एंड एवरी काइंड ऑफ मूवीज. इवन you won't believe, okay, you may believe that I even have a poetic channel where I am just narrating the letters, some poetic channel, यानी कि कुछ creative writing, letters, romantic kind of stuff. उसका मेरा एक पर्टिकुलर चैनल है लेटर्स बाय शिशिर. अभी ज़्यादा वीडियोस देंगे बट आई हैव स्टार्टेड. सो आई लव दैट आर्ट एंड क्रिएटिविटी. आई लव सिनेमा जो कि मैं मूवीज दिखाई जा रहे हैं. आई लव दैट आर्ट, आई लव फिल्म मेकिंग. What I don't love is that you set unrealistic expectations of the love, which is not true, because वो एक act. So when I love watching movies, I just go and get entertained, and sometimes I try to learn because I'm also learning filmmaking, so I consider myself student of cinema, so I try to learn. And other than that, I just want to get entertained. So मैं बस entertain होने जाता हूँ, and I just watch the movies, feel the vibe, enjoy it, and the real life works different. Real life works on real principles. So इसका एक और एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, जैसे कि जब मैंने ये बात कब सीखी थी, मैंने वो एस्पिरेंट्स का जो फर्स्ट सीजन आया था, हो गया भाई कल 2-3 साल हो गए. तो जब फर्स्ट सीजन आया था तो एक IAS ऑफिसर है, उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, मैं उनका नाम भूल गया. तो वो उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो डाली थी और उन्होंने ये बोला था कि बहुत अच्छा है कि आप सबने सीरीज़ देखी, और किन्हीं लोगों ने उन्हें ईमेल भी किया था कि प्लीज़ इस पर कुछ वीडियो बनाओ, आप उनके जैसे भी लगते हो. तो शायद वो हीरो जैसे लगते हुए जिन्होंने एक्ट किया था, मैं उनका नाम भूल गया, जिन्होंने मूवी सीरीज़ में एक्ट किया था, मेन लीड जो थे. तो
उन्होंने भी यही बात कही थी कि व्हेन यू आर वॉचिंग मूवी तो सिर्फ उससे इन्फ्लुएंस होके मत सोच लो कि मैं आईएएस बनूंगा, क्योंकि वो सिर्फ वो मूवी देख करके अगर तुम सोच लो कि मैं आईएएस बनूंगा, अब नाउ यू कैन टेक द इंस्पिरेशन कि यार फैसिनेटिंग आईएएस बनना, मैं तो वहाँ पे तुम शायद उससे इंस्पायर्ड हो कि सर्च करो कि व्हाट इट मीन्स टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, वो ठीक है। लेकिन सिर्फ मूवी देख करके सोचते हैं आई विल बिकम एन आईएएस ऑफिसर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मूवी इज नॉट रियलिस्टिक। तो उन्होंने यही बात को बोला था कि सिर्फ मूवी देखो और एंटरटेन हो, और व्हेन यू जब मूवी खत्म हो जाए देन कम आउट ऑफ इट यार, दैट्स इट, एंजॉयमेंट हो गया, दैट इज एंजॉयमेंट, दैट इज बीइंग एंटरटेन। हाँ कुछ मूवी बहुत रियल, मैं सिर्फ उन रोम कॉम्स की बात कर रहा हूँ, बट देयर आर मेनी मूवीज विच आर बेस्ड ऑन द रियल, एज ए सेट की रियल लाइफ वर्क्स ऑन रियल प्रिंसिपल्स। सो कुछ ऐसी मूवीज भी होती हैं जो रियल प्रिंसिपल्स पे होती हैं, सब कुछ सच ही है, बट यार वो उन मूवीज का नाम हम जानते हैं नहीं, क्योंकि हमें तो वो ऐसी वाली मूवी चाहिए जो मेन स्ट्रीम में हमको दिखाई जाती हैं, जिनकी मार्केटिंग बहुत तगड़ी हो रही होती है, जो असल में जो बहुत अच्छी मूवीज होती है उसके बारे में तो हमको पता ही नहीं। अब चलो उस टॉपिक पे भी नहीं जाते, किसी और दिन का टॉपिक रखते हैं, बट द होल पॉइंट इज दैट डोंट एक्सपेक्ट अ लाई टू बिकम द ट्रू। लिसन दिस थिंग वेरी क्लियर, यू नो इन लव बॉलीवुड पे दिखाते ड्रामा है, ये है, ये सब है, वो सब है, पता नहीं क्या 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 अंदर। एक्ट्रेस बहुत सुंदर है, नो जो हीरो है उसकी बॉडी तो मस्त है, और बिल्कुल कहना एस्थेटिक एंड बढ़िया 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 भी नहीं होता, खराब खराब भी होता है, लेकिन एंड में बढ़िया बढ़िया हो जाता है, और बिल्कुल क्या क्या हो रहा होता है। नो, इस सच्चाई में ऐसा नहीं होता। इवन तो आई लव दोज काइंड ऑफ मूवीज एंड आई विल मेक सम दोज काइंड ऑफ मूवीज इन फ्यूचर्स, बट समझ आ रहा है ना कि मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। आई लव द आर्ट, आई लव द सिनेमा, मैं खिलाफ हूँ आपके उस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से। यू कैन रिक्रिएट दो सीन्स एंड बॉलीवुड सीन्स विद योर लव्ड वन जस्ट फॉर फन, बट प्लीज आई होप मैं अपने पॉइंट को बहुत अच्छे से ड्राइव कर पा रहा हूँ। यू नो देयर इज अ थिंग विच आई रेड समवेयर कि एट सम पॉइंट विद योर लव्ड वन एक समय ऐसा आता है कि व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग टू से एक्चुअली वो ईच अदर को इतना तक जान चुके हैं, पहचानते हैं, तो तब क्या होता है लव इज, उस समय क्या होता है दैट यू जस्ट स्टे विद हर और हिम इन द साइलेंस, यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट देयर, शी इज जस्ट देयर, एंड यू गाइज आर जस्ट सिटिंग सेइंग नथिंग, जस्ट सिटिंग, जस्ट डूइंग नथिंग, देयर इज अ साइलेंस एंड यू आर ओके विद इट, देयर इज नॉट a conflict, there is not noise, just silence, and you guys are sitting there, maybe just holding hands or आसपास बैठे हुए लेटे हुए, just no word, nothing. It may sound boring, it may look boring, but it is not. दूर से देखने में बोरिंग लग सकता है कि कोई शांत से बैठे, it is the most beautiful feeling because it is love. ऐसा कुछ होता है रियल लाइफ में, और चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, तो आई होप कि आपको इस चीज़ से बचाएगा। एंड इन सब का श्रेय क्रेडिट जो हमारी अनलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, हम बनाने लगते हैं, मैं फिर से इंस्टाग्राम को ही देना चाहूँ। पिछले एपिसोड में मैंने बोला था कि जो डैंक मीम्स और ये सब मीम्स होते हैं, डार्क ह्यूमर के नाम पे कुछ भी कर रहे होते हैं, बच्ची जो होगी, छोटी छोटी बच्चियाँ होगी, उनके लिए जो कमेंट्स होते हैं डार्क ह्यूमर के नाम पर कर देते हैं, मतलब हमारी बहन बेटियाँ होगी उनके लिए। और चलो उसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में बात कर ली है, लेकिन फिर से मैं इंस्टाग्राम के उस एडिट्स को ही श्रेय देना चाहूँगा कि किस तरीके से वो उसको रोमांटिसाइज कर देते हैं जो कि सच नहीं है, और फिर लोग वही कंज्यूम करते हैं एंड वी बिकम व्हाट वी कंज्यूम। सो हम उस तरीके के एडिट्स देखते हैं, उस तरीके के एक्सपेक्टेशंस पालने लग जाते हैं, वही पे स्टोरीज पे लगाते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं, और कमेंट्स में हर कोई रो रहा होता है, परेशान होता है, ये चाहिए वो चाहिए, वी बिकम व्हाट वी कंज्यूम। तो उस तरीके के एडिट्स अब देखो, एज एन एडिटर आई ऑल्सो नो हाउ एडिटिंग वर्क्स एंड आई एम ऑल्सो लर्निंग एडिटिंग, अप्रिशिएट यार क्या एडिट बनाते हैं, बट इट्स नॉट देयर प्रॉब्लम, दे आर क्रिएटिंग द एडिट्स, एडिटर्स की दिक्कत नहीं है आप यहाँ पर, द थिंग इज, और तुम्हारी भी दिक्कत नहीं है, इंजॉयमेंट की तरह लो, सेम प्रिंसिपल है, एंटरटेनमेंट की तरह लो, सच मत मान टाइप से, ये तो तुम्हारी चीज़ है, वो तो इंटरनेशनल बहुत अच्छा काम किया है कि उसने खूबसूरत एडिट बना दिया, क्योंकि उसका तो काम ही होता है एडिटर डायरेक्टर का एक ऐसी दुनिया बनाना, दे क्रिएट द वर्ल्ड,
उनको बता के कि देखो ये इधर, and you have to learn the difference between the cinematic world and the real world. Real world can be cinematic, but the cinematic world cannot always be real world. चलो कुछ ना कुछ करके सब बोल ही दिया कोटेज स्पोर्ट्स टाइप में, but it's true, right? And people romanticize the pain, which is not good. जाओ, ये चीज मैंने सुनी थी, किसी ने मजाक में बोली थी, बट आई थिंक इट हैज सो मच डेप्थ इन इट. एंड द थिंग सेड कि ये गाना इट वाज अबाउट अरिजीत, कि जब मैं अरिजीत के गाने सुनता हूँ तो मेरा ब्रेकअप नहीं भी हुआ होता है तो लगता है कि मेरा ब्रेकअप हो. जैसे तो मेरे को इतना दुख है गाने में, इतनी आवाज़ में जो रूहानियत है, जो जो स्ट्रक्चर है वो इसका, वो जो ऐसा फील करा देता है कि मेरे जीवन में बड़ा दुख. ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो सकता है एक सिंगर के लिए. बट इस बात से जो मैं चीज़ ड्राइव करना चाहता हूँ वो ये है कि सेम ही चीज़ कहीं ना कहीं हो रही होती है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ इतना दुख है नहीं, लेकिन इस तरीके की चीज़ें कंज्यूम करके आसपास के लोगों को देख करके हम भी सोचने लगते हैं कि दुख है. वैलिडेशन एक वर्ड है कि हम वैलिडेटेड फील होने के लिए उस दुख को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि है ही नहीं, क्योंकि उस दुख को दुख की तरह देख ही नहीं रहे, उसको तो रोमांटिसाइज कर रखा है कि दिस इज ओके टू बी लाइक दिस, टू बिकम ट्रोमैटिक, टू शेयर योर ट्रोमैटिक चाइल्डहुड, जो कि उसको ट्रॉमा स्ट्रेंड, ये भी मैंने कहीं सुना था, विच इज टू. सो यार इसको एंड करने का ही मतलब कि एंड दिस थिंग, इसको कुछ है नहीं पाएगी, इसको तो खत्म करो इसको, बिकॉज इट इज डिस्ट्रॉइंग यू मेंटली. बहुत ही मतलब अलग तरीके से तुम्हारी सोचने की क्षमता को ही खत्म कर रहा है. मेरे दूसरा यूट्यूब चैनल है मेरे नाम से, शिशिर बागवान, वेयर आई टीच राइटिंग, ऑनलाइन राइटिंग, हाउ टू राइट, एंड आई एम ऑल्सो माई सेल्फ अ कॉपी राइटर, घोस्ट राइटर, एंड आई ऑल्सो ट्राई टू राइट फिक्शन. सो आई नो दैट द ability to think and ideate is the most important skill. बट आई सी पीपल दे डोंट थिंक, सो वो सोचने की क्षमता इसी वजह से कम हो जाती है. कभी तुम खुद से बैठ करके पूछो कि इज इट रियली बॉदरिंग मी, क्या सच में ये मेरा दुख है या बस मैंने बना लिया, और सच में क्या मेरा दुख है, ये सच में क्या मेरी प्रॉब्लम है, क्या मैं ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ कभी बैठ के सोचूं कि जो गलत कर रहा हूँ, जो कि बहुत गलत है, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी ही खराब होती जा रही है. तो जब आप सोचो कि बैठ गए, आई थिंक नवल रविकांत सेड दिस थिंग कि सारी जो लोगों, जो मैन की जो प्रॉब्लम है, जितनी भी लोगों की प्रॉब्लम है, वो सब खत्म हो जाएगी अगर वो 1 घंटा शांति से कमरे में बैठना जान जाए, सीख जाए तो. बट ऐसा होता है, कभी आप शांति से बैठ के सोचते हो, कभी सोचना ही नहीं है, बस शांति से बैठना है. मेडिटेशन भी नहीं करने को कह रहा, बस शांति से बैठ जाओ. ये बैठ पाओगे, फोन देखने लग जाओगे, घड़ी या वो देखने लग जाओगे, पंखा चलता हुआ देखने लग जाओगे, किताबें होंगी वो पढ़ने लग जाओगे, बाहर उठा लोगे, ठीक है, इधर उधर देखने लग जाओगे. शांति से आराम से अपने साथ नहीं बैठोगे. वहीं से अगर वहाँ बैठने लग जाओ तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी. तो जब आप वैसे वातावरण में बैठते हैं तब आप पूछते हैं ऐसे प्रश्न कि क्या है ऐसी चीज़ जो मुझे अभी करना बंद कर देनी चाहिए, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी जो है वो बहुत ख़राब होती जा रही, क्यों नहीं कर रहे हैं ये चीज़. वाई यू आर नॉट डूइंग दिस थिंग? बिकॉज नॉइज बहुत है आसपास, बिकॉज ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ने रोक रखा है, बिकॉज जो पेन है नहीं उसको पेन बना रखा है और उसको रोमांटिसाइज भी कर रखा है. कितना कंसर्निंग है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये हमारी जनरेशन के साथ, मेरे साथ भी. बट एटलीस्ट आई एम वर्किंग ऑन दिस. मैं नहीं कहता मेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, बट थी. अब ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये चीज़ बता रहा हूँ, इट मीन्स आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ. मैं ये भी नहीं कह रहा देखो मैं तो एक्सपर्ट हूँ, बाबा हूँ, मैंने तो सब कर लिया, ये हूँ. जस्ट अ किड, क्यूरियस किड, दैट्स हाउ आई कंसीडर माई सेल्फ. एंड अब थोड़ा सा क्यूरियस हूँ, चीज़ें पता चल रही है, इम्प्लीमेंट करी है और थोड़ा सा बदलाव दिख रहा है, तो I share it with the world. That's what I'm doing. And I hope अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं then you care for yourself. Please make these changes. मैं नहीं कह रहा कि इसको कंज्यूम करना ही खत्म कर दो. कुछ टाइम के लिए अगर आपको लग रहा है खत्म कर दो, ताकि पोजीशन में आ जाओ, दिमाग मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाओ, और फिर देखो बस इंटरटेन होने के लिए. एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के लिए, वो झूठ को सच मानने के लिए. जिंदगी जो है वो, अब वो भी जिंदगी के बारे में मैं खुद को क्रेडिबल मानता ही नहीं कि कुछ बात कर सकता है, कोई भी कोई कर सकता है. बिकॉज
कुछ समझ ही नहीं आएगा अगर समझने जाएंगे तो। ज़िंदगी तो ऐसी है भाई, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम समझ सकते हैं, हालांकि यहाँ पे हम ज़िंदगी नहीं समझते, अपनी चीज़ें समझ रहे, ये फालतू की एक्सपेक्टेशंस हैं और रोमेंटिसाइज कर देते हैं पेन को, उसी चीज़ को हम समझ लेंगे। अब उस चीज़ को सॉल्व ही करना हमारे हाथ में है। बस ऐसे सॉल्व करते जाएंगे तो मैं नहीं कह रहा तुम ज़िंदगी का मतलब जान जाओगे, बट एटलीस्ट यू विल लिव योर लाइफ, तुम ज़िंदगी जियोगे जरूर। समझ जाओगे नहीं समझोगे इसका मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ही नहीं समझी ना मुझे समझने की मेरे को इतनी आवश्यकता फील होती है। बस जीने की बात है और जी लो, लेकिन इन सब में मत पड़ जाना, क्योंकि ये तुम्हें जीने ही नहीं देंगे। ये तो तुम्हें इंतज़ार करवाती है चीज़ें कि एक दिन जिएंगे, एक दिन कोई आएगा, ये जो लाए हैं वो सच होने लगेंगे तो जिएंगे, कोई सही लड़का मिलेगा लड़की मिलेगी तो जिएंगे, ये मिलेगा तो जिएंगे, ये करेंगे तो जिएंगे, पैसे कमाएंगे तो जिएंगे। ये आगे पैसे इंपॉर्टेंट है ये मैं समझ में कि नहीं, और ये रिलेशनशिप्स प्यार मतलब कि किसी के साथ होना भी इम्पोर्टेंट है, फिर सही ढंग से। बॉलीवुड बॉलीवुड रोम कॉम्स नहीं है, ये तुम्हारी ज़िंदगी है। यहाँ पे जब बंदा मरता है तो मर ही जाता है, तो जब डिस्ट्रॉय होता है तो आप डिस्ट्रॉय हो ही जाओ। जब कोई चीज़ हाथ से छूटेगी वो छूट जाएगी, और गिरेगी तो टूटेगी ही टूटेगी, रीटेक्स नहीं है। बट हाँ मौके हैं, ज़िंदगी तुम्हें मौके देती है, उन क्या पता कुछ मौके दिए हो और हमेशा मौके देती हैं। जो अगली बार मौका दे इस बार पकड़ लेना उस मौके को और जस्ट जीना उस मौके। मैं भी नहीं कह रहा उस मौके को पकड़ के जीत लेना, जीतना और हारना नहीं, बस जीना, और उस जीने में ही जीत। वन मोर थिंग, प्रेम। मैंने प्रेम के बारे में सुना था संदीप माहेश्वरी से जब मैं था 9th स्टैंड। बहुत ही फैसिनेटिंग स्पीच थी, अगर आप अभी भी देखेंगे तो वो होगी, मैंने तो बहुत साल पहले देखी थी, जहाँ पे प्रेम को सर ने डिफाइन करा कि प्रेम क्या है। प्रेम वर्ड आया है परम से, उससे ऊपर कुछ नहीं। रोशनी की बात हुई है, अंधेरे की बात हुई है, कुछ कुछ बातें मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ, बट लेकिन अब जब मैंने प्रेम शब्द जब भी बोलता हूँ तो मुझे वो स्पीच हमेशा याद आती जो मैंने बचपन में 9वीं 10वीं में देखी। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि जो जो मैंने वहाँ सुना था, अगले दिन ही मैं स्कूल गया और स्कूल में जा कर के मैंने सबको बताया, टीचर ने खड़ा करा और मैंने प्रेम के बारे में सबको बताया, और किसी को ही नहीं बताया कि मैंने संदीप माहेश्वरी से सुन के आया हूँ या मैं उनके शब्द बोल रहा हूँ। उनको लगा मेरे शब्द हैं सिवाय मेरे दोस्तों के, तो फालतू तो नहीं कहेंगे, बहुत अटेंशन मिल गया और कूल भी बन गए जो सुबह में बनने की चाह होती है। बट इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस लिस्निंग संदीप माहेश्वरी सर। बट यहाँ पे मैं उनकी बात नहीं कहने वाला, मैं बात कहने वाला हूँ जो मैंने शायद कहीं ओशो से सुनी है। हाँ, आई थिंक ओशो सेड दिस थिंग कि प्रेम जो है वो तुम्हें स्वतंत्र करता है। प्रेम तुम्हें स्वतंत्र कर, अगर वो तुम्हें छोड़ के भी जा रही, उसका जाने का मन है, तो उसको जाने दोगे। प्रेम तो यही कहता है, यही चीज़ स्वतंत्रता, यही कि वो स्वतंत्र है। और एक और कुछ है ऐसे, वो पोएटिक में भी बोलते हैं उसे जी कि ना कि तेरे हाथ में मेरे हाथ है जंजीर में। पोएटिक में भी बोलते हुए ऐसे बोल नहीं पाया बिकॉज मुझे एग्जैक्ट लाइन्स नहीं आए। तो इसका इसका इशारा यही है, इसका मतलब यही है कि जो प्रेम है वो तुमको स्वतंत्र करता है। तो ये तुम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो कि जब आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो क्या वो प्रेम है? अगर प्रेम है तो आप स्वतंत्र हैं, और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, ये चीज मुझे बांध रही है, तो वो बंधन है। प्रेम स्वतंत्रता और ये बंधन बांधता। तो जहां आपको लगे कि आप बंधने लगे, बंधते जा रहे हैं, वो प्रेम नहीं है। काफी रिलेशनशिप में तो यही प्रॉब्लम है कि आप बंधने लगते हैं और उसको प्रेम का नाम दे देते हैं। हमने हजारों चीजों को प्रेम का नाम दे रखा है, और प्रेम का सिंपल सा मीनिंग स्वतंत्रता। हालांकि सिंपल सा पूरा प्रेम वर्ड को हम स्वतंत्रता नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इसको फील अगर तुम स्वतंत्रता कर रहे हो जाओ तो वहां पे प्रेम है। और जहां आप स्वतंत्रता फील नहीं कर रहे, बंधन फील कर रहे हैं, फिर वो बंधन है। तो बंधन में बंधना नहीं है, स्वतंत्र होना है, फ्री होना, उस फ्रीडम के साथ जिंदगी जीनी। तो अगर आप फ्री ही नहीं है, आप स्वतंत्र ही नहीं है किसी के साथ होकर के, तो फिर वो प्रेम थोड़ी किसी बंधन में बंधने के लिए तो नहीं आएगा। तो उस बंधन से खुद को जल्दी से मुक्त कर लेना चाहिए। और मुक्त करते कैसे हो? स्वतंत्र होकर के। आप स्वतंत्र कैसे होते हो? खुद से जब प्यार करने लग जाके,
जब आप मान लो एक बंधन में बनते गए, परेशान होते गए, लेकिन एक दिन आए हो आपने अपने लिए स्टैंड लिया कि नहीं, मेरे को नहीं रहना यहाँ पर। वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, भाई बहन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, या किसी जगह से भी हो सकता है। सो ये एक साइन हो सकता है जहाँ आप समझे कि आप स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है आपके। इवन ओशो ने ही कहा है कि हमेशा स्वतंत्रता ऊपर है, प्रेम नीचे। हालांकि प्रेम मतलब स्वतंत्रता ही है, लेकिन हम प्रेम के अलग मतलब निकाल लेते हैं। तो हमेशा याद रखो, स्वतंत्रता ही प्रेम, तुम्हारी स्वतंत्रता ही प्रेम है। तो तुम्हारी स्वतंत्रता को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। हानि पहुंच रही है, बंधन में बनते जा रहे हो, तो मेरे भाई और लड़कियों उस चीज से बाहर निकलो। I think I really loved, I'm also loving this podcast, the conversation, because I never record this podcast after making script, या scripted नहीं होता। हाँ, आपको सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में बना लेता हूँ, लेकिन scripted नहीं होता है। तो I really believe कि जो naturally निकलता है, जो interesting conversation, this is the conversation that I am having with you. तो conversation कभी scripted नहीं होनी चाहिए। It should be interesting, natural, with flaws, with fumbles, और सारी mistakes के साथ रियल होनी चाहिए। रियल कॉन्वर्सेशन ऐसी होती है। मेरा दूसरा जो चैनल है, आई ट्राई टू एडिट समथिंग एंड पुट कट्स। थोड़े कट्स यहाँ पे भी हो जाते हैं, बीच बीच में मैं रुकता हूँ पानी पीता हूँ, तो आई ट्राई टू कट दैट थिंग। अदर देन दैट, दिस इज अ रॉ कॉन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड मी। नाउ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट, जिससे मुझे बड़ी प्रॉब्लम है, द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग्स। Now this is said by Shyam Bhatt. Perhaps the biggest red flag is the desire to divide the relationship behaviors into the green flags and the red flags. Listen it again. Perhaps the biggest red flag is the desire to divide the relationship behaviors into the green flags and the red flags. इसका मतलब ये है कि जो ये अगर सच में रेड फ्लैग वगैरह चीज़ ये है भी, सच में अगर रियलिस्टिक है, तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग यही है कि वो इच्छा होना एक रिलेशनशिप में, एक रिश्ते में, कि आप डिफरेंट बिहेवियर्स को रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स में परिवर्तित कर दो, यानी कन्वर्ट कर दो, कैटेगराइज कर दो। तो होता क्या है कि यहाँ पर यही सबसे बड़ी गलत चीज़ है कि अगर तुमने उसको कैटेगराइज कर दिया है कि ये जी रेड फ्लैग है, ये जी ग्रीन फ्लैग है, और ये बदलते भी है, ये भी समझो, हर पर्सन के लिए अलग है। कुछ लोग क्वेश्चन ऐसे माइक लेके आ जाते हैं, व्हाट इज द बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग इन द बॉयज। ना, अरे भाई, मतलब क्या है ये, मतलब व्हाई आई हैव दिस प्रॉब्लम, बिकॉज यू विल नेवर हैव समवन हु हैज, अगर हम इस ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के कंसेप्ट को ही समझ ले, देन यू विल नेवर हैव समवन हु हैज ओनली द ग्रीन फ्लैग्स। अब वो ये इंस्टाग्राम की दुनिया से बाहर आओ तो पता चलेगा, उस रील्स एंड एडिट्स की मीम से बाहर आओ तो पता चलेगा दैट वर्ल्ड वर्क्स डिफरेंट। आज और जब हम ये कहते हैं कि दिस इज ग्रीन फ्लैग, दिस इज रेड फ्लैग, तब वहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको रोक रहे हैं, जो एक्सेप्टेंस होती है, यानी कि जब हम एक्सेप्ट, मैं नहीं कह रहा कि उसके, मान लो कि किसी ने बोला जी मेरा रेड फ्लैग तो उसका रूड बिहेवियर है, मैं नहीं कह रहा उस रूड बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लो, बट अगर तुम किसी के साथ उसको तो तुम करोगे ही नहीं ना एक्सेप्ट यार, बट मैं कह रहा हूँ कि कैटेगराइज मत करो, क्योंकि मान लो आप प्यार में हो तो वो अंडरस्टैंडिंग का स्कोप ही खत्म, चांस टू वर्क ऑन देमसेल्व्स। जब आप रिलेशनशिप में हो, प्रेम में हो, तो प्रेम क्या करता है, इट मेक्स यू बेटर, इट मेक्स यू ब्लॉसम, खिलते हो तुम, तुम्हारे अंदर प्रेम का फूल खिलता है, तुम खिले खिले रहते हो। तो जब खिलते हो तो तुम इस प्रकार खिलते हो, तुम बहुत करेजियस फील करते हो, बहुत अलग प्रकार की स्ट्रेंथ फील होती है। लेकिन तभी वो स्ट्रेंथ फील कर रहे हो, अगले दिन ही आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी बॉयफ्रेंड कहती है यू नो व्हाट, दिस इज द रेड फ्लैग इन यू, और वो जो खिला हुआ फूल था वो मुरझाने लगता है, जो स्ट्रेंथ थी वो लो होने लगती है, वो जो एनर्जी है वो छूटने लगती है। हालांकि अगर वहाँ पे एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग होती तो हम ये कह सकते थे कि यू नीड टू वर्क ऑन दिस, लेट्स इंप्रूव दिस हैबिट यार, हम इसको वर्क करते हैं, इस पर काम करते हैं, चांस टू वर्क ऑन देमसेल्फ। कि हम वो चांस ही नहीं देते अपने पार्टनर को जब हम इस तरीके से कैटेगराइज कर लेते। अगर चांस देते जो वो फूल खिल रहा था वो और खूबसूरती से खिलता, क्योंकि अब स्ट्रेंथ भी है, करेज भी है, तो जो खुद पे काम करना था वो शायद वो लड़का या लड़की खुद पे और ज़्यादा काम करती या करता, और वो जो रेड फ्लैग सच में एक गलत आदत थी वो शायद खत्म होती। और प्यार यही तो करता है, तुमको बेहतर बनाता है। और तुमने प्यार से पहले ही कह दिया कि जो चीज़ तुम्हें
बेहतर नहीं बनाती, इस वजह से तुम्हें प्रेम या फिर जो भी चीज़ है वो नहीं चल पाएगा। द होल कंसेप्ट ऑफ रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग, आई एम अगेंस्ट दैट थिंग। मैं नहीं कह रहा रेड फ्लैग में जो रूड बिहेवियर से गलत चीज़ लड़के या लड़कियां करती हैं उसको नेगलेक्ट कर दो। मैं कह रहा हूँ कि इस कैटेगराइजेशन को हटा दो अपने दिमाग से। और आई डोंट नो वेयर दिस कम फ्रॉम यार, रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग। मैंने तो बचपन में सुना नहीं था, ना हमने कभी अपने माँ बाप से सुना है, या हम किताबें पढ़ते हैं, वेद वगैरह पढ़ते हैं, जो भी हमारी किताबें हैं। अगर सच में प्रेम के बारे में पढ़ने जाओगे कहीं तो मैं रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग मिलेगा। ये सब ये जेनजीज, ये हमारे आसपास की जनरेशन, इवन कहने को मैं भी जेनजी जनरेशन में आता हूँ, बट ये जेनजी तो जैसे जेनजी वर्ड और इन्फ्लुएंसर वर्ड ऐसे तो ये गालियाँ हैं, हालांकि है नहीं, मतलब ऐसा लगता है क्योंकि काम ही ऐसे है कि ग्रीन फ्लैग्स। और ये बड़ा ही बोल्ड बोल रहा हूँ, मेरे को बोल्ड बोलना बहुत पसंद नहीं है, बट ये जो चीज़ें हैं ये बड़े कंसर्निंग मुझे लगते हैं, क्योंकि मैं अपने आसपास दोस्तों में भी देखता हूँ, अपने छोटे भाई बहनों में भी देखना शुरू कर दिया है, जो कि अब बोल भी नहीं सकते इतनी बोल्डली, बट यहाँ पे मेरा पॉडकास्ट है और आई एम ऑल्सो ओपन टू द क्रिटिसिज्म और फ्रीडम ऑफ स्पीच यार है ही, तो आई एम एयर स्पीकिंग व्हाट आई बिलीव इन एंड यू स्पीक व्हाट यू बिलीव इन। बट अगेन आप क्रिटिसाइज करेंगे ठीक है, लेकिन बट यू हैव टू से टेल मी वेयर दिस केम फ्रॉम, ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग। और टेल मी कि यार तुम अपना बताओ ना यार, तुम तो खुद को भी क्यों कैटेगराइज करोगे रेड फ्लैग में? जब हम कैटेगराइज कर देते हैं तो मतलब स्कोप खत्म कि जी रेड फ्लैग है अब कर लो। अरे भाई मतलब वो कैटेगराइज कर दिया तो वो चीज जो रेड फ्लैग में गलत चीजें थी वो सुधरी हुई कैसे? स्कोप कहाँ है, अंडरस्टैंडिंग कहाँ है, एक्सेप्टेंस कहाँ है? अब किसी चीज को सुधारना है तो उसकी एक्सेप्टेंस होती है। जैसे कि मैं मान लो कि गालियाँ देता हूँ, तो पहले तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई देता हूँ, पहले तो करूँगा ही नहीं, मतलब माँ बाप के सामने किसी के सामने नहीं देता मैं अच्छा इंसान। पहला स्टेप तो वही होगा कि मैं एक्सेप्ट करूँगा, फिर अंडरस्टैंड करूँगा, फिर उस चीज़ को सुधारूंगा। लीस्ट ये भी कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया और इन लोगों की ही देन है। हमारी उम्र के जो बच्चे हो गए इन्होंने ये बना रखा है, बट प्लीज़ अपनी रूट्स मत भूलिए, जो हमको हमारे जो संस्कार हैं। अब संस्कार का भी बड़ा यार कंट्रोवर्शियल हो जाता है संस्कार के नाम पर। मैं बस ये कहूँगा कि अपनी वैल्यूज़ मत भूलो, अपनी रूट्स मत भूलो। और सिंपल सी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि टिके रहो, वो हो जाओ कि लकीर के फ़कीर बन जाओ, बट हाँ एटलीस्ट यूज योर माइंड यार कि रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग कंसेप्ट है भी, ये क्या चीज़ सही भी है या नहीं है। आई थिंक ये तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है, और ऐसे कैटेगराइज करते रहोगे देन देयर इज़ नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ बेटरमेंट। सो प्लीज स्टॉप डूइंग दिस। और ये तो कुछ नहीं, और एक और चीज़ जैसे सिचुएशनशिप। अभी सिचुएशनशिप ये वर्ड ही क्या बनाया किसने? मतलब इट मीन दैट यू आर टुगेदर। मेरे को समझ भी थोड़ा थोड़ा अब आने लगा है कि सिचुएशनशिप बेसिकली कि तुम साथ होते हो, हर चीज़ करते हो, बट तुम टैग नहीं देते या फिर एक दूसरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं मिलाते। अब ये यार इससे ज़्यादा डिप्रेसिंग की चीज़ क्या होगी? वट कैन बी मोर डिप्रेसिंग देन दिस? मुझे तो लगता है कुछ है या हो सकती है, मतलब कि तुम वो भी साथ नहीं है, तो इसको भी खारिजी वर्ड होता है हिंदी में, इसको नेग्लेक्ट करो, इसको अपनी डिक्शनरी से हटा दो सिचुएशनशिप की नाम की चीज़ को। कम से कम यार पीस रहेगी, खुद को जान पाओ, इन सब चक्करों में मत पड़ो। एंड अगर तुम्हें लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल पूर्ण रूप से सही नहीं है, एंड दैट इज़ ग्रेट, मतलब कि तुम कुछ सोच पा रहे हो, तुम्हारे पास कुछ तो है, या फिर तुम्हारा कुछ बायस्ड बन रखा है जिसकी वजह से तुम मुझे नहीं सोच आगे ही नहीं सोच पा रहे हो। तो द थिंग इज कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ या आप डिसएग्री करते हैं, देन आई वॉन्ट यू टू थिंक कि वट इज़ राइट फॉर यू एंड डू दैट थिंग एंड सी अगर ये वर्क कर रही है ठीक है, नहीं कर रही थिंक अगेन एंड डू वट वर्क्स फॉर यू, थिंक अगेन डू वट वर्क्स फॉर यू, फाइंड वट वर्क्स फॉर यू। लेकिन थिंक सोचो कि सही है या गलत है, मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ, या आसपास के लोग जिन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं इनको फॉलो करना बनता भी है या नहीं, या बस ये फिर अंधेरे में या आंख बंद करके बस फॉलो ही करते चले जा रहे हैं। थिंक अबाउट दिस थिंग, सोचो इनके बारे में, जस्ट स्टार्ट थिंकिंग, बिकॉज यू हैव दैट एबिलिटी। उस सेंस को बढ़ाओ सोचने के, समझो और फिर आगे बढ़ो। आई होप यू लाइक द होल एपिसोड। जो भी मैंने चीज़ें कही, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि डिसएग्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि हर किसी के अपने पर्सनल बिलीव्स होंगे। आई एम ओपन टू द क्वेश्चन एंड आई एम ओपन टू द क्रिटिसिज्म। अदर देन दिस, अगर आप इन चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं किसी भी तरीके से, सो प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ, सेव योर सेल्फ, नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू।
स्टे कनेक्टेड टू योर पेरेंट्स यार, ये सबसे बड़ा मैं कंसर्न देखा हूँ कि हम अपने पेरेंट्स से बहुत दूर होते जाते। तो कुछ ना कुछ करके थोड़ा सा उनके पास आइए, उनसे उनको बताइए, क्योंकि मुझे लगता है जो माँ बाप हैं, जो पेरेंट्स हैं, या अगर कोई बड़ा भाई बहन है, फैमिली है, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। दोस्त भी है, बट मैं दोस्तों का नहीं बोलता, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों के दोस्त भी इतने यूजफुल साबित नहीं होते, अच्छे दोस्त नहीं होते। Remember that you deserve love, and I am here. Yeah. I will also try. I don't consider myself therapist or psychologist. Consider क्या मैं हुई नहीं, मतलब इसके लिए पढ़ाई लगती है जो कि मैं नहीं हूँ, बट आई कैन ऑलवेज गाइड यू, यू वांट एनी हेल्प। मैंने सोचा था कि बीच बीच में पॉडकास्ट के एपिसोड में मैं अपनी भी स्टोरी किसी न किसी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। पूरी स्टोरी बताऊँगा तो फिर से बहुत लंबी चली जाएगी, लेकिन कुछ ही शब्दों में बताऊँ तो जो जो मैंने लिखा है, ये जो चीज़ें जो मैंने कही हैं गुस्से में एकदम बोल्ड होकर के, क्या यार क्या यार, उन सभी चीज़ों को मैंने किया है। ये सभी मिस्टेक्स प्रॉब्लम्स मैंने देखी है, उन मिस्टेक्स को मैंने किया है। मैंने वो बंधन देखा है जब मैं बंधता गया, मैंने दिमाग नहीं लगाया, दिमाग के मतलब मैंने समझा ही नहीं कि स्वतंत्रता है। और एक और चीज़ होती है जो मेरी स्टोरी में है कि जब आपका आई डिडंट हैव एन ईजी चाइल्डहुड, तो उस वजह से आई हैड फियर्स, आई हैड ऑल्सो दिस फियर ऑफ बीइंग अलोन, ऑफ नॉट गेटिंग लव। सो व्हेन आई, जब उस उम्र में मैंने कदम रखा और मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आया, सो देर वर मुझे थोड़ा बहुत प्यार मिलने लगा, थोड़ी बहुत चीज़ें वो फील होने लगी। तो मैं बहुत ही, वो होता है ना कि तुम्हें थोड़ा बहुत मिल जाए तो तुम हो जाते कि अब तक कुछ नहीं मिला, थोड़ा बहुत मिल जाए, जैसे खाना ही ले लो कि तुम्हें कुछ नहीं मिला इतने टाइम तक, पर थोड़ा सा मिल जाए तुम्हें लगता है कितना मिल गया। तो कितना मिलने की वजह से जो मेरे रिस्पॉन्स होते थे बहुत ही लविंग होते थे, बहुत ही क्रेजी एनर्जेटिक एक्साइटेड होते थे, बट वहाँ से ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता था। तो अब यहाँ पे उसकी गलती नहीं, यहाँ पे गलती मेरी थी, क्योंकि मैंने खुद को पूर्ण नहीं करा था। आई वॉज नॉट कम्प्लीट, आई वॉज जस्ट हंग्री ऑफ लव, एंड इट वॉज पेनफुल, और वहाँ से भी वो सपोर्ट मिला नहीं। और ये सच यही है कि नहीं मिलता, अगर मिल रहा है तो देन इट इज़ ब्लेसिंग, दैट्स व्हाट आई से। बट मुझे नहीं मिला, तो वहाँ जर्नी शुरू हुई कहीं ना कहीं सेल्फ डिस्कवरी की। पूर्णता की तो मैं नहीं कहूँगा, वहाँ से शुरू हुई, वहाँ से केओस की शुरू हुई, नॉइस की शुरू हुई, एंड आई एम ग्लैड कि वो सब हुआ। ये तो बस छोटी चीज़ें, मैं ये पॉडकास्ट पे अपना दुख दुखड़ा नहीं डालना चाहता, बट हाँ समय समय पे मैं बताता रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने सीखी है। बट जो आज मैं हूँ, मुझे लगता है वो उन्हीं रिश्तों की वजह से हूँ, उन्हीं लोगों की वजह से हूँ, चाहे वो मेरे साथ नहीं है, शायद बहुत गलत उन्होंने किया या कौन मैंने गलतियाँ करी, बट दैट्स लाइफ, दिस इज़ द ब्यूटी कि आज मैं हूँ, मैं खुद को बड़ा फुलफिल फील करता हूँ, अच्छा महसूस करता हूँ। किसी के ना आने की आस है, ना कुछ अभी ऐसी कोई प्यास है, बस वो पूर्णता की तरफ, वो फुलफिलमेंट की तरफ, वो कंप्लीटनेस की तरफ जो बढ़ रहा हूँ, वो खूबसूरत है। तो इसी नोट पे पॉडकास्ट का एंड करते हैं। जो भी चीज़ पे, जिस भी स्टेज पे आप हैं, इट इज़ टीचिंग यू समथिंग, इट टॉट मी मैनी थिंग्स। अभी मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कुछ कुछ अभी भी बहुत चीज़ें वहाँ छिपी हुई हैं जो मैं सीख सकता हूँ, और सीखता हूँ अपने पास्ट से, जो जहाँ से मैं आ रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने करी। हाँ, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि चीज़ें डिफरेंट हो सकती थी या नहीं हो सकती थी, बट अब मैंने ये भी सोचना बंद कर दिया है, क्योंकि जो हुआ वो होना सही था। क्योंकि अगर उस होने के बाद जो मैं अब बन रहा हूँ, या जो मैं हूँ और जो मैं बनूंगा, अगर ये ऐसा है, यानी कि जो मैं बन रहा हूँ, तो अच्छा है ना कि वो सब चीज़ें हुई, चाहे जितनी पेनफुल थी, बेकार थी, एक्सपीरियंस अच्छे नहीं थे, और बहुत खूबसूरत चीज़ें भी हुई, ये नहीं सब खराब चीज़ें हुई, खूबसूरत चीज़ें भी हुई। तो लेकिन आज हमने सिर्फ लेकिन खराब चीज़ों की बात करी, खराब नहीं, हमने खराब से अच्छी चीज़ों की बात करी है, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस एंड माय एक्सपीरियंस। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि यू वुड नॉट बी सो मच इंटरेस्टेड इन डूइंग माई स्टोरी, बट हाँ कहीं ना कहीं वो जो क्रिएटिव साइड थी वो भी बहुत फुलफिल हुई, जिसकी वजह से आज लेटर्स बाय शिशिर है, तो मैं उसको भी बड़ी क्रिएटिवली लिख पाता हूँ, मे बी बिकॉज ऑफ दोज रिलेशनशिप। पहले ऐसा लगता था, बट असल में मैं सच बात बताऊँ कि इट वॉज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप। आई हैव बिन राइटिंग सिंस चाइल्डहुड स्टोरीज, मैं बचपन से लिख रहा हूँ। रिलेशनशिप वगैरह तो अभी आके हुआ है, जो उनके 11वीं 12वीं में आए थे, एंड कॉलेज वगैरह, कॉलेज तो खैर में गया नहीं, बट हाँ उस कॉलेज की उम्र। सो
I hope you love the podcast. You like the podcast. If you have any question, comment down, email me, DM me on Instagram. And I hope you enjoyed. Now, milte hain next week with a new episode. Thank you so much.